Bismillahirrahmanirrahim. Students, today starting with the new topic that is integration bounds. This is in fact the continuing of the summations, and we have done a number of problems that were involving some arithmetic series or they are in the form of geometric series, and by applying the certain formulas we come up with the solution or the summation of those series, that what that series or whether it is for geometric or arithmetic, what sum it is going to result in. Today we are going to see a new version of summation where we are given with such functions or such forms that cannot be solved directly. Rather, we have to make use of some other methods by which we are going to come up with a solution against those summations. Let's give you an example against that. For example, we have a summation that is I from 1 to n under root of I, right? So if I may say that find the summation or find the result of this summation, then definitely you are not going to plug in any formula here. Some of the summations are such that they don't have a nice closed form solution, as in case of a geometric series or as in case of a arithmetic series. So nobody knows the answers for such summations, but there are certain ways of getting very close bounds for such functions. Because here you can see we have under root of I. So if I may open this series, this is going to be under root of 1. Then I'm going to have under root of 2, some under root of 3, plus the last term is going to be under root of n for any value of n, right? So this is neither geometric series not an arithmetic series because some sort of function is involved here. So in order to calculate the sum of these series, we are going to make use of a certain technique, right? In order to solve those summations. The technique is that uh, we are going to find some bounds, that what is the approximate solution of these summations, यानी approximately किसके equal होगा with some plus minus, ठीक है? और वो जो plus minus है, these are basically the integration bounds. Now the technique is that these bounds are obtained by replacing this summation by an integral, right? In the first step, we go for the replacement of this summation by an integral. Please keep one thing in mind, that summation and integral are somewhat one and the same thing, with the difference that you can say that in case of some integer values or discretized values, we go for summation. In case of an analog signal or a signal or a data that has some continuity with it, we are going to go for integration, that is basically the area under the curve. So sum is equal to the sum of areas, and basically we are going to approximate this summation by an integral. Now in order to solve such kind of summations, let's proceed with the procedure that we are going to take or adopt in this manner. First thing is that I'm going to replace this under root of I, right? I'm going to replace it with a f of I. ठीक है, कोई फंक्शन है ना, जैसे कोई भी एक नॉन लीनियर फंक्शन हो सकता है जिसमें हम अंडर रूट ऑफ आई भी हो सकता है, आई का आप क्यूब रूट भी फाइंड कर रहे हो सकते हैं आप इसके अंदर इसका नेचुरल लॉग फाइंड कर रहे हो, और एनी अदर पॉसिबिलिटी. सो वट एवर इज द ऑपरेशन इन्वॉल्व ओवर आई एम गोइंग टू डिनोट इट एज अ फंक्शन ऑफ आई. ठीक है, मैं इसको एफ ऑफ आई से डिनोट कर रही हूँ. So I can write that this is equivalent to the summation from I to n f of I. ठीक? Now one thing that is clear here is that this function, ये जो f of I का function है यानी under root of I है, with the increasing values of I, ठीक है ना, I की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो क्या f of I यानी अंडर रूट ऑफ I की भी वैल्यू बढ़ेगी? डेफिनेटली. अंडर रूट ऑफ 1, उससे बड़ा कौन सा होगा? अंडर रूट ऑफ 2, देन अंडर रूट ऑफ 3, देन से अंडर रूट ऑफ 10, 100, वट एवर इट इज. ठीक है, सो आई कैन से दैट द गिवन फंक्शन एट हैंड, विच इज under root of I,
that is basically an increasing function. ठीक है, increasing function क्यों है? Because it is having a pattern, it is having some values, every term is increasing with the increasing value of I. You can also call it a positive increasing function. ठीक है ना, पॉजिटिव साइड पे ये इंक्रीज करता जा रहा है with the increasing values of n. Now, in order to proceed ahead, first I'm going to give you a pictorial view of this function कि ये function step by step कैसा पैटर्न शो करेगा और फिर उसके थ्रू हम इंटीग्रेशन बाउंड्स पे कैसे जाएंगे. सो सबसे पहले जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रही हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है. Now let me draw a scale here. Starting from 0, this axis is basically denoting n, and this one is denoting f of n. f of I को आप समझ लें, उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करें. ठीक है, आप यूँ भी समझ सकते हैं, बल्कि अ बेटर अप्रोच विल बी कि मैं इसको f of I कहूँ और इसको I कहूँ. राइट, इसको मैं कह देती हूँ f of I एंड लेट मी कॉल इट I. ठीक है, अब I की वैल्यूज हम क्या अडॉप्ट करें? 0, then 1, 2, 3, so on. The very last value is going to be n, and the very previous value is going to be n minus 1. ठीक, let's say this is f of 1, यानी f of 1 क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ 1. फिर है जी f of 2, यानी अंडर रूट ऑफ 2, यानी जो कि कैसे आया है? f of 1 में f of 2 ऐड करके आया है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखती हूँ तो वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से 2 तक. तो f इस पूरे समेशन की वैल्यू आप कैसे इवेल्युएट करेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2. ठीक है ना, डेफिनेटली उसकी हाइट उससे ज्यादा होगी. एंड सो ऑन इट इज गोइंग टू टिल f of n, and the very previous one is going to be f of n minus 1. Right? Now, being an increasing function, so this one is going to be f of 1. Then I'm going to have f of 2. Then comes f of 3. Finally, I'm going to have something like, let me draw it here. That is having a height or an area which is f of n minus 1. And the last one is going to be f of n minus 2. ठीक, ये आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इससे प्रीवियस क्या होगा? n minus 2. ठीक, नाउ एवरी रेक्टेंगल इज गोइंग टू हैव, ये जो बार्स मैंने ड्रॉ की हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है f of 1 को. दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग f of 2, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग f of 3, दिस इज f of n, and this is f of n minus 1. ठीक, अच्छा, अब अगर मैं से इन पॉइंट्स को लूं, ठीक है, then combining all those points, let me draw it here. थोड़ा सा इतना क्लियर नीट नहीं बन रहा, but it should be a straight line, right? So let me first erase it. Okay जी. Now basically हम bounds कैसे लिखते हैं? आपका जो फंक्शन है f of I and the summation upon it, this is basically the sum of all these rectangles. ऐसा ही है ना? f of 1 की क्या वैल्यू थी, फिर f of 2 की क्या वैल्यू थी, मैंने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया. इसीलिए f of 3 की क्या वैल्यू थी, फिर f of n क्या होगा, f of n minus 1 क्या होगा. all these functions, आप इसको यहाँ पे अगर क्लियर समझना चाहें तो ये f of 1 हो गया,
this is going to be f of 2, this one is f of 3 and finally this is f of n. I hope चीजें क्लियर हो रही होंगी. ठीक है, इसी को मैंने ग्राफिकली जस्ट रिप्रेजेंट किया कि अच्छा इसकी इतनी हाइट है, फिर इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, एंड सो ऑन. You are adding up all these rectangles, all these bars, and it is giving you the answer of this whole summation, right? Now, since we are given with such a function that is not a geometric series, not neither an arithmetic series, we have to go for some indirect method here. ठीक, फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर मैं, आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं एफ ओ वन को अलग कर दूं, ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको येलो कर्व नजर आ रहा है, फ्रॉम 1 टिल दिस वैल्यू n, ये जो पूरी एक आपके पास येलो कलर का एक बार सी नजर आ रही है, इसका अगर मैंने एरिया फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन लूंगी. कहाँ से कहाँ तक, integration will be from 1 to n. I'm going to find the area under the curve of this function that is from 1 to n. Now my summation f of I, ठीक है, वो basically अगर मैं सिर्फ let me write it here, इसको मैं erase कर देती हूँ ताकि मैं आपके सामने ये बाउंड्स लिख सकूँ और वो आपको क्लियर हो जाए. ओके जी, लेट्स राइट इट हियर. ये जो समेशन है I from 1 to n f of I, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करने जा रहे हैं और उसको हम डायरेक्ट मेथड से नहीं करें, रादर हम इंटीग्रेशन बाउंड्स के थ्रू ऐड करें. तो इफ आई मे राइट इट f of 1, यानी ये पहली बार ये जो आपके सामने यहाँ पे लिखी बनी हुई है, प्लस द एरिया अंडर दिस येलो कर्व, येलो फंक्शन के अंदर है, क्या समेशन f of I की वैल्यू इससे बड़ी होगी या कम होगी? डेफिनेटली यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर आपने पहली वैल्यू पूरी की पूरी इंक्लूड की, दैट इज फॉर i इज इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स टिल n आप ये एरिया इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके अंदर आप कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करवा रहे हैं. किसको एक्सक्लूड करवा रहे हैं? ये वैल्यूज आपने एक्सक्लूड की हैं. ये जो थोड़ी सी यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं, ये ट्रंकेट हो रही हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ओरिजिनल सम इससे बड़ा होगा. ठीक है, so this function is going to be greater than or at most equals to f of 1 plus integral from 1 to n f of x dx. right? ये मैंने एक उसकी ऊपर एक लो बाउंड लगा दिया है कि f of I का सम एटलीस्ट इससे बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि उसमें आपने ये वैल्यू इंक्लूड नहीं की. ठीक, अब एक और फॉर्म की तरफ आते हैं. अगर मैं यहाँ पे डॉट्स ड्रॉ करूँ और मैं इन पीक वैल्यूज को ज्वाइन करूँ, ठीक है, दिस टाइम आई एम गोइंग टू ज्वाइन ऑल दोज पॉइंट्स. ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन हुआ हुआ है. दिस टाइम इट इज गोइंग टू गिव मी एन अपर बाउंड ऑन दिस समेशन. राइट, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी? समेशन I from 1 to n f of I. ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, आप अगर इस येलो वाले फंक्शन को स्लाइड करवा दें, ठीक है, स्लाइड कैसे करवा दें कि दिस इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स लेफ्ट बाय 1 यूनिट, हर रेक्टेंगल बाय 1 यूनिट लेफ्ट साइड पे स्लाइड हो रहा है. तो ये जो येलो लाइन 1 से शुरू हो रही थी वो कहाँ से शुरू होगी? 0 से. 2 वाली कहाँ पे आ गई? 1 पे. 1 वाली कहाँ पे आ गई? 3 पे. एंड सो ऑन इट इज गोइंग टू मूव एंड इट इज गोइंग टू एंड एट n-1. ठीक, आप यूँ समझ लें कि मैंने इसको ड्रैग करवा दिया है लेफ्ट साइड पे बाय 1. अगर एक ट्राइंगल है या कोई भी कर्व है आपके पास, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो 1 से n थी, मैंने उसको ड्रैग करवा कर 0 से n-1 कर दिया, क्या इसके एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा? वट एवर इज द एरिया अंडर द कर्व, विल इट गोइंग टू बी चेंज्ड? नो.
आपके स्पैन चेंज कर देने से, स्लाइड कर देने से, ड्रैग कर देने से कभी भी एरिया चेंज नहीं होता, ठीक। एंड इफ यू जस्ट let me remove this one, the yellow curve that I have drawn here। हाँ, अब ये ब्लैक कर्व के ऊपर ही देखिएगा, यहाँ पे अब जो फंक्शन f of I है, ठीक है, इसकी वैल्यू लेस होगी। क्यों लेस होगी? क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसके अंदर आपने ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमारी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज रिमूव हुई थी, जो येलो में थी, हमने इंक्लूड नहीं की थी। दिस टाइम बाय स्लाइडिंग इट टूवर्ड्स लेफ्ट, आप एक एक्स्ट्रा डेटा को यहाँ पे एंटर करवा रहे हैं, ये वाला कर्व, ठीक। सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन और एट मोस्ट इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुई? अब आपने येलो कर्व को अपने माइंड में रखना है कि मैंने उसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग किया। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0, इट इज गोइंग टू एंड एट n-1 f of x dx plus the last prevailing function that is f of n, ठीक। तो आपका सम कि आपको लोअर और अपर बाउंड्स मिल गई हैं कि वो किससे ग्रेटर होगा, किससे लेस होगा, ठीक है। तो one is the lower bound, second one is the upper bound. Now the most important point is here that 1 to n of f of x ho या 0 to n minus 1 f of x dfx हो, both are going to have the same area। क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1 से n लिखा हुआ हो तो span of the integration क्या है? n minus 1। अगर 0 to n minus 1 लिखा हो तो span of the summation क्या है? n minus 1 minus 0, which is again n minus 1। So both these integrals are in fact same, क्योंकि सेम उसी येलो कर्व को आपने लेफ्ट साइड पे ड्रैग किया तो उसके एरिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The point here is that if they are going to have the same area, then I can write it like integral from 1 to n f of x dx, ठीक है। दोनों को आप सेम ले सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो गो फॉर हेयर कि आप यहाँ पर भी 0 to n minus 1 कर दें, यानी दोनों इंटीग्रल्स को सेम रख दें बिकॉज बोथ आर गोइंग टू हैव द सेम स्पैन। द पॉइंट, द टर्म दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस इज लोअर बाउंड के अंदर आपके पास f of 1 आ जाएगा, अपर बाउंड के अंदर आपके पास f of n आ जाएगा, ठीक। Now let's try to solve this function that जो हमारे पास summation थी with the help of these bounds, right? Let me remove this diagram and now we are going to move according to these bounds. So the summation at our hand that we have to solve is I from 1 to n under root of I, ठीक। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि दोनों इंटीग्रल्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। f of x मेरा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x, जस्ट वेरिएबल का फर्क है और कुछ भी नहीं। सो फ्रॉम 1 to n अंडर रूट ऑफ x dx, right? This is going to be x raised to the power 1 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 with the bounds from 1 to n. So this is going to be n raised to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 minus 1 raised to the power 3 by 2 क्या हो जाएगा? 1 divided by 3 by 2. So this is going to be 2 by 3, मैंने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है, with n raised to the power 3 by 2 minus 1, right? So the integral from 1 to n अंडर रूट ऑफ x dx इसके इक्वल आया, ठीक। अच्छा, अब f of 1 लिख लेते हैं। f of 1 is going to be अंडर रूट ऑफ 1, that is 1. f of n is going to be under root of n, right? So what will be the lower and the upper limits against the function? That is going to be
let me write it here, summation I from 1 to n f of I, यानी अंडर रूट ऑफ आई जो था, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके है, f of 1 यानी कि 1 प्लस 2/3 n raised to the power 3/2 minus 1, and it is less than or equals to the same integral result, 2/3 n raised to the power 3/2 minus 1 प्लस f of n, और f of n क्या था, अंडर रूट ऑफ n। ठीक, इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, देन दिस विल बी 1 प्लस 2/3 n raised to the power 3/2 minus 2/3 less than or equals to summation I from 1 to n f of I less than or equals to 2/3 n raised to the power 3/2 minus 1 plus n raised to the power 1/2, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं ना यूँ। इन दोनों को कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, देन आई कम अप विद 2n raised to the power 3/2 minus 1 whole divided by 3, and this is going to be I from 1 to n f of I less than or equals to 2n raised to the power 3/2 minus 2 plus 3n raised to the power 1/2 whole divided by 3। ठीक, अब आप देखें दोनों एंड्स पे जो आपके पास कॉमन टर्म आ रही है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी 2/3 n raised to the power 3/2 minus 1/3, इसको लिख सकते हैं ना यूँ, और समेशन 1 to n f of I less than or equals to 2n raised to the power 3/2 divided by 3 minus 2/3 प्लस अंडर रूट n। मैंने फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम आ रही हैं, ठीक है, और उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों एंड्स के ऊपर क्या हो रहा है, दैट इज बेसिकली दिस टर्म एंड these terms, right? So I can say that the an approximation of it, इसको अगर further approximate हम करें, I can write that I from 1 to n f of I, ठीक है, that is equals to 2n raised to the power 3/2 divided by 3 plus some value that is delta of n, ठीक है। वो डेल्टा ऑफ एन बेसिकली क्या है, इस डेल्टा ऑफ एन की एक लोअर और अपर बाउंड है, यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है -1/3 ये वाली टर्म, और लेस देन और इक्वल्स टू है -2/3 प्लस अंडर रूट एन, ठीक है। ये माइन्यूट सी वैल्यू है जो कि जिसके दरमियान ये डेल्टा वेरी करे, लेकिन जो डोमिनेंट वैल्यू है वो कौन सी है, दैट इज द फैक्टर which is 2/3 and 3/2. So we can say that the summation I from 1 to n under root I is approximately, ये सिंबल किसका है, अप्रोक्सीमेशन का, this is approximately equals to 2n raised to the power 3/2 divided by 3. Clear? Now let's do another function here that is just opposite to the one that we have done. This time the function at hand is summation I from 1 to n 1 over under root I.
ठीक है, उसका रेसिप्रोकल। सो आई कैन से दैट दिस इज बेसिकली अ समेशन which is from 1 to n f of I, where f of I क्या हुआ, 1 over under root I। अब पहले जरा इसको ओपन करके लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 1/1 यानी 1 ही आ जाएगी, प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी 1/√n। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका पैटर्न कैसा होगा। अगर मैं इस फंक्शन को i के अगेंस्ट प्लॉट करूं with the increasing values of I, what is the value I am getting against these terms? Are they going to increase or they are going to decrease? देखें, जब हमारे पास अंडर रूट आया था तो उस टाइम पर ये वैल्यू इंक्रीज करी थी, ठीक है ना। अंडर रूट 3 की वैल्यू ग्रेटर होगी अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 4 की वैल्यू अंडर रूट 3 से ग्रेटर होगी एंड सो ऑन। But here, since we are taking the reciprocal, the values are going to decrease here. So I can say that this is a decreasing function. And being a decreasing function, this time my integration bounds are going to work in a different manner. ठीक है, हमारे पास लॉजिक कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है, सिर्फ हमारे बाउंड्स यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। सो वेन एवर वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाउंड्स, द प्रोसीजर इज द सेम, बट जो उसमें इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, राइट। सो graphically, let me draw it here. Again we have I here and f of I. So I is having the value from 0, then 1, 2, 3, 4, and so on up to n, n minus 1, last one is going to be n minus 2. अच्छा, अब ये बताएं कि इस पूरी सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, इसकी होगी f of 1, जो कि हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। f of 2 की वैल्यू उससे कम, f of 3 की वैल्यू उससे कम, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी होगी, f of n की, ठीक। So along this side, the amplitude side, the highest value is going to be of f of 1. सेकेंड पे किसका एम्पलीट्यूड होगा, f of 2. सबसे कम किसका होगा, f of n का, उससे कम f of n minus 1, उससे उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा, f of n minus 1, और उसके बाद f of n minus 2, और यहाँ पे f of 3। तो जस्ट ये ऑपोजिट पैटर्न में मूव कर। So let me draw the bars here. f of 1 का एम्पलीट्यूड सबसे हाई है, यानी ये f of 1 के इक्वल आ गया। Let me erase it. Right? Then comes f of 2. Then comes f of 3. Finally, we are going to have f of n and a bigger bar, that is f of n minus 1. Let me just neat it. इसको remove कर देते हैं. So this time we are going to have such a graph, decreasing function. ठीक? Now if I may join these values,
राइट। थोड़ा सा नीट है बट दीज पॉइंट्स आर ज्वाइनिंग विद ईच अदर। ठीक है, अब बताएं कि अगर हम ये कर्व लेते हैं, ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट इज एंडिंग एट n-1, ठीक है, दिस फंक्शन, उसमें इस फंक्शन की वैल्यू इससे डेफिनेटली कम होगी। क्यों कम होगी? बिकॉज इसमें आपने इन ट्राइंगल्स को, ये जो पोर्शंस हैं, इनको ट्रंकेट किया है, इनको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज दैट द समेशन I from 1 to n f of I, अब f of I का मतलब है 1/√I, ठीक है, इसकी वैल्यू लेस देन, सॉरी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी ना, क्योंकि जो हम एरिया ले रहे हैं वो इससे छोटा है। इट इज गोइंग टू हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द इंटेग्रल फ्रॉम 0 to n-1 f of x dx। ठीक है ना, ये समझ रहे ना, जो येलो लाइन है इसके अंदर अंडर द कर्व 0 से लेकर n-1 तक, ये एरिया प्लस द लास्ट प्रिवेलिंग फंक्शन जिसका एरिया किसके इक्वल है, f ऑफ n। यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ, दिस इज f ऑफ 1, दिस इज f ऑफ 2, उससे छोटा f ऑफ 3, दिस वन इज f of n and this one is f of n-1। ठीक, so this is going to be the lower bound, यानी आपका सम इस मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा, राइट। अब वही काम करते हैं, फंक्शन को स्लाइड करवाते हैं। ठीक है, दिस टाइम आई एम टेकिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, मैंने आपकी कर्व को स्लाइड करवाया किस साइड पे, राइट साइड पे। सो हियर आई एम गोइंग टू हैव द वैल्यू by joining these points। okay, ठीक है, समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ज्वाइन लेस के साथ। सो दिस इज, let me remove this point। ओके जी, सो द वन इन ब्लैक, ठीक है, इसका एरिया क्या है, फ्रॉम 1 till n। ठीक है, एरिया इज गोइंग टू रिमेन द सेम एंड दिस टाइम वी हैव इंक्लूडेड द फंक्शन f1, और ये कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज यहाँ पे एड अप हो रही हैं। ऐसा ही है ना, लास्ट टाइम क्या हुई थी, ट्रंकेट हुई थी, यहाँ पे ऐड हो रही है। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस द अपर बाउंड दैट द समेशन I from 1 to n f of I, this is going to be less than or equals to, ये सम लेस होगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड हुई हैं, ये वाली एक्स्ट्रा वैल्यूज। ठीक है, किससे, कहाँ से, पहला पूरा फंक्शन आपने कौन सी फर्स्ट वाली बार इंक्लूड की है, यानी कि f of 1 प्लस ब्लैक वाले के अंडर द कर्व दैट इज अगेंस्ट द ब्लैक लाइन which is the integral from 1 to n f of x dx। ठीक, अगेन विद द सेम कॉन्सेप्ट के एरिया उसको स्लाइड कर देने से एरिया चेंज नहीं हो रहा, बोथ आर गोइंग टू हैव द सेम फॉर्म, वी कैन use the same integration bounds here, that is from 1 to n f of x dx, right? So now let's solve it for under root of x. First I'm going to find 1 to n 1 over under root x dx. This is going to be x raised to the power 1 by 2 divided by 1 by 2 from 1 to n। ठीक, जो कि क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 2x raised to the power 1 by 2 from 1 to n। Applying the limits, this is going to be 2 under root of n minus 2। ठीक, so this time what will be my f of 1? This is simply going to be 1 over under root 1
that is 1. What is f of n? This is going to be 1 over under root n. ठीक, अब इसको लिखते हैं उसी समेशन के फॉर्म में with the bounds I from 1 to n f of I. क्या है f of I हमारा? 1 over under root I. सो ये ग्रेटर देन और इक्वल है किसके? यही जो हमारी इंटीग्रेशन बाउंड्स थी 2 अंडर रूट एन माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एन यानी 1 ओवर अंडर रूट एन, एंड इट इज लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 यानी के 1 प्लस 2 अंडर रूट एन माइनस 2. सो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 अंडर रूट एन माइनस 2 प्लस 1 over under root n less than or equals to the same summation and 2 under root n minus 1. So here the dominant factor is this one and these terms are acting as delta. ठीक? So I can say that summation I from 1 to n f of I is nearly equals to 2 under root n plus some delta function so that देखिए सॉरी मुझे यहाँ पे इक्वल लिखना चाहिए था क्योंकि मैंने डेल्टा लिखा है और डेल्टा जो हमारा है उसकी लोअर लिमिट क्या है? -2 प्लस 1 बाय अंडर रूट एन और उसकी अपर लिमिट है -1. ठीक, and excluding that delta I can say that summation I from 1 to n f of I is nearly equals to 2 under root n, right? Okay ji, now let's solve a question against it. For example, I have given a factorial of n which is in fact the product I from 1 to n I. ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं कि बेसिकली n फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट एंड सो ऑन डॉट n, right? If I take natural log on both sides, that is ln of n factorial, this is going to be ln of 1 और आपको नेचुरल लॉग का रूल याद होगा कि प्रोडक्ट किससे रिप्लेस हो जाता है? प्लस से. तो प्लस natural log of 2 plus natural log of 3 and so on plus natural log of n. So I can say that natural log of n factorial is equals to the summation I from 1 to n ln of I. ठीक, अब अगर आप गौर करें तो ये सेम हमारे पास वही फॉर्म बन गई है जिसको मैं कह सकती हूँ कि दिस इज अ समेशन फ्रॉम 1 to n f of I. फंक्शन ऑफ आई ना, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो f of I बेसिकली क्या बन गया? नेचुरल लॉग ऑफ I. अब इस समेशन का रिजल्ट फाइंड करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ इंटीग्रेशन बाउंड्स. ठीक, नाउ इट इज गोइंग टू बी अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, सो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन वाली बाउंड्स यहाँ पे यूज करेंगे. So for that I first need to find the area that is from 1 to n, जो कि दोनों केसेस में सेम आता है चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो. f of x dx, that is I have to find the integration from 1 to n ln of x dx, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंगली 1 से लेकर n. सो दिस इज इक्वल टू n, अगर हम पुट करेंगे तो n ln ऑफ n माइनस n माइनस
1 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 1। ठीक, अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, और ये माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगी? n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n प्लस 1। प्लस कैसे हुआ? ये माइनस और माइनस की वजह से। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ पे एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ n भी लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ 1, जो कि क्या होता है? 0। और एफ ऑफ n क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ n। ठीक, अब चलते हैं बाउंड्स की तरफ। ठीक है, बीइंग एन इंक्रीजिंग फंक्शन, द समेशन i फ्रॉम 1 to n f of i, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ i, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किसके है? f ऑफ 1, जो कि क्या आया था हमारे पास? 0 प्लस n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n प्लस 1, इंटीग्रेशन का रिजल्ट। और ये लेस देन और इक्वल्स टू है किसके? n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n प्लस 1 प्लस f ऑफ n, जो कि क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ n। ठीक, अच्छा, इसको थोड़ा सा हम पहले ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n प्लस 1। ठीक, लेस देन और इक्वल्स टू दिस थिंग, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू, अगर मैं l ऑफ n यहाँ से कॉमन लूँ तो इसके साथ क्या आ जाएगा? n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। ठीक, नाउ इफ आई मे राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, अगर इसका मैं इनवर्स लॉग लूँ दोनों साइड्स पे, तो ये क्या, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? n रेज टू द पावर n। ऐसा ही होता है ना, n टाइम्स ln ऑफ n, और माइनस हो रही है ये चीज, ठीक है ना, n प्लस 1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर n प्लस 1, लेस देन और इक्वल्स टू, मैंने जस्ट इनवर्स लॉग नेचुरल लॉग यहाँ पे लिया और कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? n, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, ये पावर्स में चला जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर, ये जो माइनस है उसकी वजह से डिवाइड हुआ और पावर में क्या आया? n प्लस 1। ठीक, सो आई कैन से दैट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं n रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर n प्लस 1 n रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर n प्लस 1। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। देखिए हमने क्या, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि n फैक्टोरियल को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा था, i फ्रॉम 1 to n i। ठीक, फिर हमने इसका नेचुरल लॉग लिया था, ऐसा ही था ना, और यहाँ पे हमारे पास समेशन की फॉर्म में आ गया था, प्रोडक्ट समेशन से रिप्लेस हो गया था 1 से n ln ऑफ i, जिसकी हमने ये बाउंड्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ये जो मेरा समेशन है ये बेसिकली किसके इक्वल थी? मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देती ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ये बेसिकली समेशन को अगर मैं इस टर्म्स में लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे ln ऑफ n फैक्टोरियल, और फाइंड बेसिकली हमने यही करना था, इसी का एक क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन फाइंड करना था। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल था। अब अगर मैं इनवर्स नेचुरल लॉग लूँ तो ये सारे नेचुरल लॉग्स खत्म हो जाएंगे ना, और मेरे पास इंटरमीडिएट क्या रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये नेचुरल लॉग भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाले भी खत्म हो गए। ठीक, सो आई हैव गॉट एन अपर बाउंड and a lower bound against this n factorial, and here you can see the dominating factor कौन सा है? This one, n raised to the power n divided by e raised to power n plus 1. So I can say that
n factorial is nearly equals to n raised to the power n divided by e raised to the power n plus 1. ये एक क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन आ गई, फॉर्मूला आ गया किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने, right? So this is the whole topic that is against the integration bounds. This is very very conceptual. Do try to listen to the lecture and try to solve each and every step very keenly and very carefully. If you people have any questions, definitely you can discuss it with me. Thank you.